malarial cycle. We were already on the disease part, correct? We completed the health part and we moved to the disease part and we just reached the malarial cycle, correct? So we are moving to that, and then slowly malaria was the first disorder which we started, and we'll be completing the disorders. Fine class? इतना पढ़ रहे हैं ना? Let's start class. अपना ऑडियो थोड़ा carefully, if possible, please put it off. I'm sharing the documents. Okay. 1 second. Okay, class, we are almost at the midway of the chapter. Let's look at coming. Yeah, the malarial cycle. अगर आपको याद है तो लास्ट टाइम हमने यहाँ पे रुका दिया था. मलेरिया के सिम्टम्स किए थे, ठंडी लगेगी, बुखार आएगा, एंड देन स्वेटिंग, करेक्ट? कोल्ड, हॉट, स्वेटिंग, and then we moved to the cycle. Everybody can hear me clearly? In case it's not audible, please let me know in the chat. This diagram you can see in the textbook also. This is the malarial cycle. Now class, we all know malaria is due to female Anopheles mosquito. So you have to understand the pattern. There are two hosts, the mosquito and human being. So some part of the life cycle is in the mosquito, where who is going plasmodium, and some part of the life cycle is in human body, where again who is going the plasmodium. Is that clear? So whenever a mosquito bites, how the cycle starts. So let's look at the cycle. We'll just elaborate it a bit moving ahead. Clear? Look carefully. This is the mosquito. Correct? Now this mosquito bites here. Now very important is this mosquito has the parasite in form of sporozoid. Please remember the word. This comes as MCQ. When the mosquito bites a person, what is introduced into the body? Sporozoid. Okay, the sporozoid for plasmodium, which will cause the infection. From there, these sporozoid once inside the body, ये किसकी बॉडी है क्लास? ये ह्यूमन बॉडी है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में आपके मॉस्किटो. ठीक है? So this human body, it goes to the liver. Look at the word hepatic cell. Hepatic cell, and there it grows, and the sporozoid changes into hypnozoid inside the hepatic cell, and it is now waiting. Then it grows inside the liver cell, absorbs nutrition, and becomes merozoid. Sporo, hypno, mero. ठीक है? These merozoid enter the RBC, erythrocyte. तो हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर चले गए. There they grow and become tropnozoid. See the changes, huh? Tropnozoid. We later simplify it, but this is the proper cycle where we are going. Then there what happens? The erythrocyte will break. The erythrocyte is bursting, and what it releases is male and female gametes. Male and female gametes. Look at the wording. The mosquito introduces sporozoid, which enter our liver. Hepatic matlab liver cell. They are growing there. Hypnozoid. From there, it is maturing to merozoid.
merozoite goes to RBC, tropnozoite, there it will burst. देखो ये burst हो गया, okay, and what it is releasing? Male and female gamete. Now these gamete will not fuse in the human body. तो यहाँ तक human body का. Suppose another mosquito, this mosquito bites this human being. So this gametocyte is taken up by the mosquito along with blood. Fine. These gametes develop from micro to macro. छोटे से बड़े mature हो गए and they fuse to become zygote. अब हो गया fertilization. Male and female gamete fuse to become zygote, which develops into a developing embryo ookinete, that is the egg, in the midgut digestive system, which moves to the salivary gland and breaks and forms sporozoid. फिर ये मॉस्किटो ने किसी को बाइट किया तो स्पोरोजोइड फिर से ह्यूमन बॉडी में आएगा. And this is happening again and again and again till we stop the mosquito bite. Till we stop the mosquito bite. Now class, this is the exact cycle in your book. Let's look at a simplified version to understand. देखो please, ये ज्यादा डायग्रामेटिक है, ठीक है. First infected mosquito, that mosquito infects this human being. The sporozoid goes into the liver. I hope you're moving with me. Infection liver में गया, liver cell से किधर गया? RBCs. RBCs burst हो गए, gamete आ गए. Second mosquito, it goes into the body of mosquito. Are you understanding this part? Now let's move ahead. Sporozoid फिर से उसके बॉडी में गया. अंदर क्या हुआ था? Fertilization. And sporozoid is back. Again it will bite. Again it moves. This is how what is happening. हमारे बॉडी में infected parts बोलो. Liver, RBC. दो important part. Hepatic and red blood cells. They both are in high risk. Are you getting it? Let's look at one more version. You will understand it better. Who is coming? Sporozoid. I told you please by heart the word sporozoid. किसने भेजा है? Mosquito ने. ठीक है. Once it comes inside, ये हमारा pink color का हमारा liver. Hepatocyte मतलब liver cells. Correct. वहाँ पे develop हुआ merozoid, which enters our RBC. RBC में they divide and divide and divide and grow. Then they burst to release what? What are they releasing here? Tell me. Gamete. Correct? They release the gamete. These gametes have to be taken up by male and female gamete by the mosquito. And again it can come back as sporozoid. Is there any way to block? Very simple way. Block the mosquito bite. Block the mosquito bite. अगर आपको ये मॉस्किटो बाइट नहीं कर रहा है तो विल वी गेट मलेरिया? इस गंदा पानी पीने से मलेरिया होता है? नहीं. फूड से? नहीं. सो इज देयर मलेरिया ड्यू टू एनी अदर रीजन? नो. सो व्हाट कैन वी स्टॉप? बाइट ऑफ मॉस्किटो. कैन वी किल ऑल द मॉस्किटोज इन द वर्ल्ड? नो. वो जरा मुश्किल काम है. मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल बोल सकते हैं उसको, बिकॉज it belongs to the category of insects, arthropoda, highly adapted, and there are so many variations available. So it is very difficult to stop that way, but we can avoid going to places where we can avoid growth of mosquito, we can reduce their number, we can try to kill their larva and thus block the cycle. So that can be done. Okay? In case the malarial cycle comes, it will come for 3 months. ठीक है? इतने डिटेल में नहीं भी ड्रॉ. 3 months. So you will have to draw 2 mosquitoes. वो याद रखना है. पहला इन्फेक्शन तुरंत लिवर में ग्रो के RBC, ये स्टेजेस मिस नहीं होने चाहिए. ठीक है?
आरबीसी से बनेगा गैमीट विच विल नॉट फ्यूज। सपोज ये मॉस्किटो बाइट ही नहीं करता हो तो कोई बात नहीं, वो गैमेट बन के दे विल डाई, दे कैन नॉट फ्यूज इन ह्यूमन बॉडी। आर यू गेटिंग इट? ह्यूमन बॉडी में उसका फिर प्रोग्रेस नहीं है, इट हैज टू गो टू द नेक्स्ट मॉस्किटो इफ देयर इज अ स्प्रेड ऑफ मलेरिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो हमें मॉस्किटो बाइट चाहिए ही, ना इन्फेक्शन के लिए चाहिए ना इन्फेक्शन पास होने के। अगर मुझे मलेरिया नहीं है तो आई शुड सी कि ये स्पोरोजोइट मेरी बॉडी में नहीं है, और अगर है तो आई हैव टू सी कि ये गैमीट्स किसी और को नहीं दे दूंगा। आर यू गेटिंग इट? सो इन बोथ द केसेस द इंफेक्शन नीड्स टू बी अवॉइडेड बाय प्रिवेंटिंग द मॉस्किटो बाइट। आर वी अंडरस्टैंडिंग? सो साइकिल में कम फॉर हाउ मेनी मार्क्स? 4 और 3। यूजुअली इट इज 3। 4 के लिए बहुत ज्यादा वेटेज हो जाएगा। क्यों? चैप्टर वेटेज उतना ज्यादा नहीं, ठीक है? चैप्टर बड़ा है तो दे विल लाइक टू आस्क at least two questions from there instead of giving full marks only to malaria. So that way chances are it will go for 3 marks. Are you understanding class? तो कम से कम 3 मार्क के लिए हम एक सिंप्लीफाइड तो बना ही सकते हैं ना। मॉस्किटो बाइट, लिवर, आरबीसी बाइट, बैक टू मॉस्किटो, सलाइवरी ग्लैंड, सेकेंड बाइट, इतना तो कर सकते हैं हम सिंप्लीफाइड, वेरी सिंप्लीफाइड। विच इज द इन्फेक्शियस स्टेज? रिपीट कीजिए। समझ नहीं रहे साइकिल नहीं समझा? फिर से रिपीट करूं? ओके या डिड यू ज्वाइन लेट? मैंने 3 बार बोला है। यस मैम। साइकिल इन मॉस्किटो का नहीं समझा। देखो ये रहा मॉस्किटो, शुरू कहाँ से कर रहे हो? ओके, मॉस्किटो ने किसको बाइट किया? ह्यूमन बीइंग। व्हाट गोज इनसाइड द ह्यूमन बीइंग? स्पोरोजोइट। वो वर्ड बाय हार्ट करना है। व्हाट इज द इन्फेक्शियस स्टेज? स्पोरोजोइट। मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड विद स्पोरोजोइट, ठीक है? हमारे बॉडी में आते ही वो लिवर में जाता है। ओके, लिवर में वो ग्रो होता है, इट stages, hypnozoite, mero, it grows in red blood cell, it undergoes mitosis, divides and divides and divides, and when the red blood cell will burst, RBC break होगा हमारा, तो क्या रिलीज होगा? 2 चीज, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट। इसके आगे हमारी बॉडी में डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है? बट इफ अ मॉस्किटो बाइट्स दिस पर्सन, तो ये मेल और फीमेल गैमीट मॉस्किटो बॉडी में आ गए, ठीक है? वी आर इन विच बॉडी नाउ? मॉस्किटो। यहां से तुम्हें समझ में नहीं आया, करेक्ट? मॉस्किटो के बॉडी में वो डेवलप होंगे माइक्रो से मैक्रो, माइक्रो से मैक्रो। जैसे ही वो मैक्रो होंगे वो फ्यूज हो जाएंगे, मेल फीमेल गैमीट फ्यूज होते तो व्हाट दे बिकम? दे बिकम जाइगोट। नाउ व्हेन देयर इज जाइगोट इट विल ग्रो, so zygote divides 1 to 2 to 4 and it forms sporozoid। बट तब तक वो डाइजेस्टिव सिस्टम को क्रॉस करके किधर आ जाता है? सलाइवरी ग्लैंड्स में। मॉस्किटो के कौन से ग्लैंड में? सलाइवरी ग्लैंड्स में। फिर से क्या बन गया क्लास? स्पोरोजोइड। अब फिर से ये मॉस्किटो ने बाइट किया तो फिर से वही साइकिल शुरू हो जाएगी। तो मॉस्किटो के बॉडी में स्टेजेस क्या है? फर्टिलाइजेशन, zygote, okay, you can see oocyst मतलब egg which is developing slowly, and sporozoid। हमारे बॉडी के स्टेजेस बोलो, लिवर, merozoid, yes, RBC, then what we form? The gamete, male and female gamete, correct? Can the plasmodium survive without mosquito? No. Without us? नो, उसको दोनों ही चाहिए। आर यू गेटिंग इट? सो हम क्या कर सकते हैं ब्रेक के लिए? अवॉइड मॉस्किटो बाइट। देखो क्लास, मॉस्किटो को मलेरिया नहीं हो रहा, वो सिर्फ हमारा ब्लड सक करता है, और प्लाज्मोडियम जिससे मलेरिया होता है वो उसके बॉडी में ग्रो होता है आराम से। मॉस्किटो को कुछ नहीं होता, बट जब हमारे बॉडी में आता है हमारे ऊपर बहुत सारे रिएक्शन होते हैं एंड वी सफर। Our liver will swell, RBCs will die, we will have hemoglobin deficiency, and when RBC will die, our energy will go down, so we will get fever and cold. Are you getting it?
हीमोग्लोबिन आपका अगर 14 है तो कभी कभी 6 पे आ जाता है, 4 पे आ जाता है ड्यू टू मलेरिया. सो दिस इज पॉसिबल. नाउ टेक्स्ट बुक में मैम साइकिल ये. हाँ बोलो. मैम आपने जैसे वो कि मस्कीटो ह्यूमन के बिना नहीं रह सकता है. मस्कीटो नहीं, प्लाज्मोडियम. हाँ जो भी हो, तो दोनों जैसे सेम. बोलते फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा मस्कीटो वहीं रहते हैं, वहां पर तो कोई ह्यूमन भी नहीं रहता है. नहीं तो मैंने मॉस्किटो कहाँ बोला. सी क्लास, मलेरिया किससे हो रहा है? प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम ऑर्गेनिज्म है छोटा सा यूनिसेल्यूलर, लेकिन वो डेवलप मॉस्किटो के बॉडी में. आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्लाज्मोडियम को सरवाइव करने के लिए हमारी और मॉस्किटो की जरूरत. मॉस्किटो को नहीं. हाँ मॉस्किटो को जिसको ह्यूमन ब्लड चाहिए उसको चाहिए, तो फिर वो ह्यूमन कम्युनिटी में आएगा. तो फॉरेस्ट में बहुत सारे मॉस्किटो ऐसे होंगे जिनको ह्यूमन ब्लड की जरूरत नहीं है. हम कितने मॉस्किटोज को जानते हैं? एनोफिलिस मॉस्किटो, वी नो डेंगू, करेक्ट, वी नो फिलेरिया, इसके बाद ही वो डिजीज आने वाली है. तो हर मॉस्किटो ह्यूमन ब्लड पे डिपेंडेंट नहीं है. बहुत सारे मॉस्किटो अलगे को खाते हैं, बहुत सारे मॉस्किटोज प्लैंकटन को खाते हैं. सो दे कैन बी ऑन एनीथिंग. आर यू गेटिंग इट? अंडरस्टैंडिंग? नाउ इफ यू से फॉरेस्ट में मॉस्किटो ह्यूमन ब्लड को सक करने वाले भी है, हाँ होंगे, हो सकते हैं, बट देन दे हैव टू सी कि दे गेट ब्लड, अदरवाइज दे विल बी इन ट्रबल. अदरवाइज दे विल बी इन ट्रबल. आर यू अंडरस्टैंडिंग? गेटिंग इट? लेकिन हमें तकलीफ मॉस्किटो से क्यों है? क्योंकि वो हमको फ्री में क्या सप्लाई कर रहा है? प्लाज्मोडियम, जो हमारे पास और किसी तरीके से नहीं आ सकता. तो अगर मैं मॉस्किटो को कट करूंगी देन ओनली प्लाज्मोडियम कैन बी कट. देखो क्लास, जैसे टाइफॉइड है ना, वो बैक्टीरिया से होता है, उसके लिए मॉस्किटो नहीं लगता. तो टाइफॉइड कैसे होता है? गंदा पानी है, खाना कुछ खराब खा लिया जिसमें कुछ बैक्टीरिया, तो हम पानी को गर्म करते हैं, हम खाने को बाहर से नहीं खाते या प्रॉपर अच्छी क्लीन जगह पे खाते, वहां पे मॉस्किटो का कोई रोल नहीं. बट प्लाज्मोडियम में तो सिर्फ रोल मॉस्किटो का ही है. हु इज द वेक्टर? मॉस्किटो. आर यू गेटिंग इट? यस. एंड क्लास मॉस्किटो 2-3 वैरायटी के नहीं है, हजारों है, हजारों. यू नो व्हाई मलेरिया इज कॉल्ड मलेरिया? यू नो द नेम मलेरिया कैसे पढ़ा था? मल, मल मतलब बैड एरिया. योर एरिया वर्क कम्स फ्रॉम एयर. तो पहले हमें लगता था मलेरिया खराब हवा की तरफ से हो. Okay, this was a misconception that malaria spreads through air. There is something wrong with the air. We were not knowing about this mosquito part. Then lots of research was done. ऐसे mosquito ले लेके उसको dissect करके check किया गया कि mosquito का कोई role है क्या? Because wherever there was malaria, mosquitoes were there. तो मॉस्किटो डाइसेक्ट कर करके देखा उसके बॉडी के अंदर है क्या. फाइनली हमको मॉस्किटो के बॉडी में प्लाज्मोडियम जब मिला, क्योंकि हर मॉस्किटो के बॉडी में नहीं मिला ना, तो पहले बोला नहीं है, नहीं है, नहीं है. फिर बाद में एक में मिल गया तो चेक किया विच वैरायटी. अच्छा इट इज एनोफिलिस. एनोफिलिस भी सब में नहीं है. फिर चेक किया, अच्छा फीमेल एनोफिलिस, तब जाके वो. तो इट इज नॉट ऑल मॉस्किटो. आर यू गेटिंग इट? तो आपको भी किसी मच्छर ने काटा तो मलेरिया हो जाएगा? नहीं. फीमेल एनोफिलिस ने काटा तो मलेरिया, कोई दूसरे ने काटा तो डेंगू होगा. कभी कभी काटा तो हो सकता है आपको कुछ भी नहीं हो, जरूरी नहीं. ठीक है. बट व्हाट इज द वे टू एस्केप? प्रिवेंट मॉस्किटो बाइट. ठीक है. इज दैट क्लियर? किसको डाउट था वो क्लियर हुआ है? हाँ मैम क्लियर हुआ. ठीक है. लेकिन क्लास जब आप साइकिल पढ़ोगे टेक्स्ट बुक में ऐसे 2 पैराग्राफ दिखेंगे आपको, ह्यूमन स्टेज एंड मॉस्किटो स्टेज. तो वो हिसाब से पढ़ना. तो एक बार ह्यूमन साइड में जाने का, दूसरी बार मॉस्किटो साइड में. बट श्योरली इट विल नॉट गिव यू मोर देन 3 मार्क्स. ठीक है. तो बहुत बड़ा के नहीं लिखना, इतना लिखना कि इट शुड बी सफिशिएंट. इज दैट क्लियर? यस. इसलिए मैंने आपको सिंप्लीफाइड भी दिखा कि पहले समझ में आना चाहिए. समझ में आ गया तो वी कैन राइट ऑलवेज. करेक्ट?
आर यू गेटिंग इट? यस, इसलिए यहाँ पे लिवर बना, देखो ये सिर्फ ह्यूमन स्टेज दिखा है मैंने, मॉस्किटो बताया ही नहीं, इजंट इट? डायरेक्ट स्पोरोजोइट अंदर आ रहा है और यहाँ पे गैमीट्स बाहर जा रहा है। मॉस्किटो क्या कर रहा है वो नहीं बताया, ये ह्यूमन स्टेज बताया मैंने आपको, हमारे बॉडी को। इज दैट क्लियर? यस, श्योर। ये देखिए अनदर, यू कैन सी मॉस्किटो इन्फेक्ट्स द पर्सन, इसको बाइट किया, इसका लिवर, इसका आरबीसी, गैमिट दूसरा मॉस्किटो दूसरे को बाइट किया, उसको इन्फेक्शन हो गया, तो एक से दूसरे में लेके कौन जा रहा है? मॉस्किटो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दीज आर द वे वी रिप्रेजेंट मलेरियल साइट। इज दैट वेरी क्लियर? यस। सो मॉस्किटो, व्हिच वन? एनोफिलिस मॉस्किटो। अब देखो वो वर्ड आ गया एमसीक्यू, स्पोरोजोइड। व्हाट विल इट गिव इट टू योर बॉडी? Sporozoid, ठीक है, which will divide in liver cell and reach a stage called merozoid, correct? Yes, merozoid grow होते जाएंगे, grow होते जाएंगे, grow होते जाएंगे आरबीसी के अंदर, ये रहे आरबीसी, and they form gametes, male and female, and that is known as gametogamy और gamogamy, gametogamy और gamogamy, ठीक है, formation of गैमेट। उसके बाद क्या होता है, ये गैमेटोसाइट्स अगर फीमेल मॉस्किटो ने ले लिया बाय चांस, जरूरी नहीं है ना, तो इट विल फर्टिलाइज एंड फॉर्म जाइगोट। जाइगोट विल डिवाइड एंड फॉर्म स्पोरोजोइड। स्पोरोजोइड किधर पहुंच गया? सलाइवरी ग्लैंड मॉस्किटो के, और वहां से जाएगा दूसरे ह्यूमन बीइंग के पास, करेक्ट? तो ये जो राइटिंग पार्ट है ये मॉस्किटो वाला है, करेक्ट? और इसके पहले का जो राइटिंग पार्ट था वो ह्यूमन वाला है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ह्यूमन बॉडी में क्या हो रहा है, सेम चीज है, और मॉस्किटो की बॉडी में क्या हो रहा है, करेक्ट? तो देयर आर टू पार्ट्स इन द मलेरियल साइट, ठीक है क्लास? आर वी वेरी क्लियर? हाउ डू यू कम टू नो कि मलेरिया है? वेरी सिंपल, इट्स अ ब्लड टेस्ट, उसमें दिखाई देता है क्लियरली, क्या दिखाई देगा आपको? स्पोरोजोइड, या तो आपको मीरोजोइड, या तो सिजोंट, कोई या कोई फॉर्म में वो दिखाई देगा। सिजोंट क्या है? सिजोंट इज रिंग लाइक स्टेज। जब भी सिजोंट वर्ड आएगा तो वो जो मीरोजोइड बनते हैं ना, वैसे रिंग लाइक स्टेज में दिखते, लाइक अ साइक्लिकल रिंग। तो आपके ब्लड में ऐसी बहुत सारी रिंग्स दिखाई देंगी, तो आप पक्का गारंटी कि इट इज मलेरिया। ऐसा नहीं दिखा तो क्या दिख सकता है? मीरोजोइड सेपरेट भी दिख सकता है, ठीक है? सो इट डिपेंड्स ऑन किस स्टेज में आपका मलेरिया पहुंचा। आर यू गेटिंग इट? एंड देन वी कैन चेक इट बाय अदर मेथड्स आल्सो, बट सबसे कॉमन होता है ब्लड स्मीयर, बट वी कैन चेक इट बाय डीएनए चेकिंग आल्सो। डीएनए चेकिंग मतलब हम ऐसे केमिकल डालते हैं जिससे इमीडिएटली मलेरियल डीएनए कैच हो जाता है, पता चल जाता है अच्छा ये ब्लड में मॉस्किटो का डीएनए है, क्योंकि उस मॉस्किटो नहीं, सॉरी, प्लाज्मोडियम का डीएनए है, तो मालूम पड़। बट सबसे इजी क्या है? ब्लड स्मीयर, उसमें दिखाई देता है क्लियर। अब कंफर्म हो गया तो आप क्या शुरू कर सकते हैं? ACT, ACT very important, it is a combination therapy, okay? RT दिख रहा है आपको वर्ड? आर्टिमिसिनिन, आर्टिमिसिनिन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ड्रग, उसको दूसरे ड्रग्स के साथ मिक्स किया जाता है, मेडिसिन के साथ, और देयर आर different chemicals which can be mixed, and then we give us what we give you, a artemisinin combination therapy, ACT। लेकिन क्लास एक चीज याद रखो, अगर आपको मलेरिया है तो डॉक्टर आपको सबसे पहले क्या देगा? क्यूनोन, ओके, क्यूनाइन मेडिसिन दे देते हैं। ये एसीटी ज्यादातर हम सीवियर मलेरिया में, जब बहुत, हमने बोला था ना प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम ब्रेन तक भी फीवर जा सकता है, सो देन एसीटी इज जनरली गिवन इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम सम सीवियर प्रॉब्लमेटिक केस ऑफ मलेरिया जो जल्दी ठीक नहीं हो रहा, तो फिर वी जनरली गिव आर्टिमिसिनिन प्लस सम कॉम्बिनेशन ड्रग। आर्टिमिसिनिन क्या करता है? प्लाज्मोडियम का नंबर कम कर देता है,
और वो कॉम्बिनेशन ड्रग क्या करता है, हमको क्योर करने में हेल्प करता है, उसकी ग्रोथ को रुका, किसकी, प्लाज्मोडियम, इट मेक्स इट स्लो, सो यू कैन गेट क्योर्ड बाय अ कॉम्बिनेशन थेरेपी। AC जो कॉम्बिनेशन है उसमें बहुत सारे केमिकल आते हैं, सो artemisinin, suppose I am mixing with X, for another patient I am using Y, for another I am mixing it with Z. This will depend on the case, on the age, on the severity of the infection. ठीक है, पर बहुत बार यूजुअली अगर मलेरिया सिंपल टाइप पे चल रहा है तो क्यूनोन से ठीक हो जाए। क्यूनोन इज अ वेरी कॉमन ड्रग यूज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस, आर यू गेटिंग दिस पार्ट? तो देखो 5 डिफरेंट ACT कॉम्बिनेशंस दिख रहा, आर्टिसुनेट, सल्फोक्सिडाइन, yes, pyrimethamine. So these are different types of drugs which can be mixed with artemisinin. So artemisinin कौन recommend कर रहा है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने रेकमेंड किया है। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आर्टिमिसिनिन हर बार, सपोज आपको मलेरिया हुआ और डॉक्टर आपको ये मेडिसिन नहीं दे रहा है तो डोंट वरी, वो आपको कोई या कोई फॉर्म में क्या दे रहा है, क्यूनाइन दे रहा है। ठीक है, क्यूनाइन दे रहा है तो क्या होगा, यू विल बी क्योर्ड। जरूरी नहीं है इस थेरेपी के लिए जाना, पर सीवियर केसेस में ये देना पड़ता। ठीक है, इज दैट क्लियर? सो क्यूनोन इज द मोस्ट कॉमन वे टू ट्रीट मलेरिया। सबसे पहले डॉक्टर विल स्टार्ट विद क्यूनोन, और वो चीपर भी। ये जनरली व्हेन पर्सन इज हॉस्पिटलाइज, उसको ज्यादा तकलीफ हो रही है तब ये शुरू। ठीक है, यस, यू गॉट द फुल फॉर्म ऑफ ACT? सबको फुल फॉर्म क्लियर है? यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक देखिए, artemisinin combination therapy, ACT. I hope it is clear. Yes, उसमें कॉमन कौन सा ड्रग है, आर्टिमिसिनिन। कॉम्बिनेशन किसके साथ है, बहुत सारे अवेलेबल है, यू कैन मिक्स विद different combination depending on, I repeat, age, severity, पर्सन को कोई और डिजीज तो नहीं है उसके। ठीक है, वेरी फाइन। सो ट्रीटमेंट इज देयर। इज मलेरिया क्योरेबल? 100%। करेक्ट। मलेरिया से डेथ होती है, हाँ, लेकिन काफी रेयर होती है। मतलब इट्स नॉट दैट मलेरिया हो गए तो पर्सन इज माइनर की मेजर। व्हाट इज माइनर मेजर? नहीं, मतलब चांसेस से कम की ज्यादा। बहुत कम, बहुत कम, लेस देन 5%, लेस देन 5, वेरी लेस। ठीक है, डेथ रेट इज वेरी लेस। प्रॉपर ट्रीटमेंट एकदम सिंपल। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम लोग मलेरिया से बहुत डरते थे, पर अभी नहीं। इट्स वेरी वेरी मच अंडर आवर कंट्रोल ट्रीट। ठीक है, खाली ये हो जाता है कि इफ इट इज सीवियर तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, नहीं तो यूजुअली वी गिव ट्रीटमेंट एट होम ओनली। 15-20 दिन में पर्सन ठीक हो जाता है, बट मलेरिया गिव्स यू लॉट्स ऑफ वीकनेस, आप बहुत वीक हो जाओ। ठीक है, तो इसलिए बेटर क्या है, प्रिवेंशन। हो ही नहीं तो नहीं होने के लिए क्या करना है हमको, मॉस्किटो नेट यूज करना है, इंसेक्ट रिपेलेंट, आप टॉर्टोइज मॉस्किटो कॉइल यूज करते हो, आप ऑल आउट यूज करते हो, आप ओडोमस यूज करते हो, है ना। हम बॉडी के ऊपर क्रीम भी लगाते हैं जिससे मॉस्किटो भाग जाए। करेक्ट। सपोज आप विलेज में है तो नीम है, ओडोमोस, नीम के पत्ते जलाए जाते हैं। करेक्ट, धुआं किया जाता है जिससे मॉस्किटो भाग जाए। सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, प्रिवेंटिंग द मॉस्किटो बाइट बाय यूजिंग अ मॉस्किटो नेट। बहुत ही अच्छा है, यू मस्ट यूज। इंसेक्ट रिपेलेंट, ऐसा कोई भी केमिकल या कोई भी चीज जिससे इंसेक्ट दूर रहे। ठीक है, स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड, क्या हम घर में इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं? करते हैं मॉर्टिन, बराबर है, ऑल आउट, ये सब हम करते हैं। लेकिन क्लास गवर्नमेंट करती है ना बहुत ज्यादा, जहाँ पे गंदा पानी जमा है ना। वो देखो एक पर्सन एक पूरा ये लेकर आता है जिससे बहुत सारा धुआं निकलता है। सो व्हाट इज दैट? म्युनिसिपल यस, सो इट इज देयर ड्यूटी ना, क्योंकि स्टैग्नेंट वाटर तो घर के बाहर है, वहां जाके तो वो क्लोरीन होता है ना। क्लोरीन भी बहुत सारी चीजें होती है उसमें मिक्स, क्योंकि जो क्लोरीन है ना, मतलब DDT बेस्ड है, वो थोड़ा सा हार्मफुल है। तो इसलिए आजकल बहुत सारे वेज में, डिफरेंट वेज में मिक्सिंग करके यूज किया जाता है। ठीक है, क्लोरीन इज वन ऑफ द वे। फिर यू कैन स्प्रे केरोसिन, गंदे पानी में केरोसिन डाला तो
लार्वे की डेथ हो जाती है। फिर हमारे पास एक बहुत अच्छी फिश है गम्बूसिया, वो मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती है। तो देखो गंदे पानी में एक छोटी सी ब्लैक फिश दिखती है आपको, ऐसा उसका मुंह होता है। आई डोंट नो इफ यू हैव सीन इन रेनी सीजन, छोटी ब्लैक ब्लैक फिश मूव होती रहती है, तो वो मॉस्किटो के लार्वा को खा सकती है। सो वी कैन यूज दैट फिश आल्सो, करेक्ट। सो वी कैन ट्राई टू यूज वेरियस मेथड। लेकिन क्लास, डू यू एग्री वी हैव टू डू हाइजीन एंड सैनिटेशन? वो सबसे ज्यादा, गंदा पानी जमा ही नहीं होना चाहिए। अगर मेरे घर के बाहर हो रहा है तो मुझे देखना पड़ेगा, पीएमसी तो रोज नहीं आएगी ना क्लास। सो वी हैव टू सी दैट स्टैग्नेंट वाटर नहीं हो, वो ठीक से ड्रेन हो जाए। दूसरा, अगर हो रहा है तो वहां पे हम कोई इंसेक्टिसाइडल पाउडर या कुछ स्प्रे करें, ऑयल, केरोसिन, सो दैट द लार्वा कैन नॉट ग्रो। ओके, नहीं तो मॉस्किटो में कहीं भी आके बाइट करेगा। दूसरा, सपोज हम जहाँ पे भी जॉब करते हैं या आप पढ़ने जाते हो, कहीं भी जाते हो घर के बाहर, वहां पे भी यू टू सी कि मॉस्किटो आपको बाइट नहीं कर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वी हैव टू। आप होटल में खाने जाते हैं, देखो बहुत बार तो वहां पे एक अलग तरह की लाइट लगी होती है जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है। बहुत बार देखा है, ब्लूइश कलर की लाइट, तो उधर इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है और जैसे ही वो लाइट के नजदीक जाता है उसकी डेथ होती जाती है। सो व्हाट इज दैट? दैट इज वन वे ऑफ कंट्रोलिंग मॉस्किटोज और इवन अदर इंसेक्ट्स। सो दैट कैन बी डन। घर में मॉस्किटो रैकेट होगा, सबसे कॉमनली यूज है आजकल, करेक्ट। वी किल दी मॉस्किटो ना, इज इट? तो ऐसे बहुत 2 सारी से जगह 3 दिन बाद में खराब हो करेक्ट जाएगा। वी कैन यूज इट ना, बट दैट्स अ गुड मेथड ना, क्योंकि बहुत बार हमको धुएं से, कोई भी चीज से एलर्जी होती है, तो वहां पे वो यूज कर सकते हैं। सो देयर आर वेरियस मेथड्स, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको मॉस्किटो बाइट नहीं करना, होना ही नहीं चाहिए, ठीक है? नहीं तो यू आर एट रिस्क। अगर आप रोज ऐसी किसी जगह में जाते हो जहाँ मॉस्किटो बाइट होता रहता है, तो फिर यू आर एट रिस्क of getting malaria or dengue, or there are so many other diseases, correct? Filaria. So that is the risk. So we have to prevent malaria. ठीक है? Is it very clear? Yes. World Malaria Day. This is not in the textbook. Just there. 25th April. सबसे ज्यादा मलेरिया कहाँ होता है? अफ्रीकन एरियाज में होता है, करेक्ट? बिकॉज वो ट्रॉपिकल कंट्री है, रोज बारिश होती है, रोज गर्मी होती है, तो रोज वहाँ पानी जमा होता है, बहुत ज्यादा मलेरिया, बहुत। ठीक है? सो दिस इज अबाउट मलेरिया। वी मूव टू द नेक्स्ट डिजीज, amoeboisis. Amoeboisis is known as amoeboic dysentery. जैसे ही मैंने डिसेंट्री बोला, आपके माइंड में इमीडिएटली आना चाहिए डायरिया, लूज मोशन, वॉमिटिंग। ठीक है? वेरी कॉमन डिसऑर्डर, बहुत ही कॉमन, स्पेशली स्मॉल किड्स में। ठीक है? सो व्हाट हैपन, amoeboisis, also called as amoeboic dysentery. Is that clear? It is caused due to Entamoeba histolytica. क्लास, हम अमीबा बहुत छोटे क्लास से पढ़ रहे हैं, बराबर है? पढ़ते ना अमीबा, सीडोपोडिया, अमीबा, लेकिन सिर्फ एंटमीबा हिस्टोलाइटिका ये वैरायटी से ही इन्फेक्शन, बाकी दूसरे से इन्फेक्शन नहीं हो। आई एम रिपीटिंग द सेंटेंस, ओनली एंटमीबा हिस्टोलिटिका causes amoeboic dysentery. ठीक है? It affects our digestive system, gastro मतलब stomach, intestinal tract. It affects our gastrointestinal tract. ठीक है? और देखो साल में कितने परसेंट लोगों को ऑलमोस्ट होता है ये? 15% इन इंडिया बोल रहे, तो काफी लार्ज है नंबर। ठीक है? अब लेट्स सी होता कैसे और होता क्या है, what happens and how. So if I am having the amoeboic dysentery, I will have loose motion, diarrhea, flatulence. Flatulences, इंटेस्टाइन में क्या होगा? बहुत सारा गैसेस होने लगेगा। ओके? इज द वॉइस या क्लास आपको क्लियर है साउंड? ओके। स्टूल्स, दैट मीन्स
लूज मोशन में बहुत सारा म्यूकस आ रहा है. आर यू गेटिंग इट? सो वट एवर यू आर थ्रोइंग आउट एज फीसेस, फीसेस क्या होता है हमारा डाइजेस्टिव वेस्ट ना, जो भी फूड हम खाते हैं उसमें से जो वेस्ट जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता उसको हम बाहर थ्रो कर देते हैं. तो वो कैसे होगा लूज, उसके साथ बहुत सारा पानी, सो यू आर गेटिंग डिहाइड्रेटेड. उसके साथ बहुत सारा म्यूकस, ओके, there will be too much and this will be reoccurring again and again. Correct class? हमारे बॉडी का एक सिस्टम है. there is a proper way you maintain your body, there is a motion, there is proper motion timing. correct? हम सुबह उठते हैं, हम बाथरूम जाते हैं. करेक्ट? अब यहाँ पे आ जाए, इसमें क्या होगा, आप उठे, आपके बॉडी में कुछ भी खाना गया वो डाइजेस्ट नहीं होगा, आउट, बॉडी इज थ्रोइंग इट आउट विद लॉट्स ऑफ वाटर. So you will have lots of pain, abdominal cramp, पेट में दर्द हो बहुत सा. ठीक है? कभी कभी सीवियर केसेस में ब्लड along with the waste there will be blood, along with the waste there will be blood. मतलब केस सीवियर हो गए. क्लास यूजुअली 1-2 दिन में ये ठीक हो जाए, पर अगर ब्लड भी लॉस हो रहा है तो मतलब इंटेस्टाइन को डैमेज ज्यादा होगा. हिपैटोमीगैली, हिपैटो मतलब लिवर, मीगैली मतलब स्वेलिंग, तो लिवर में स्वेलिंग आ जाएगी. ठीक है? मतलब लिवर इज आल्सो इन ट्रबल. पैरासाइट इंटेस्टाइन से कहाँ पहुंच गया, लिवर. अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो लिवर एब्सेस, लिवर भी ब्लीड करने लगेगा. देयर में बी सीवियर फीवर एंड लॉट्स ऑफ पेन ऑन योर राइट साइड. राइट साइड में कौन है, लिवर, बराबर ना. राइट साइड में क्या है हमारा, लिवर. सो यू हैव टू टेक ग्रेट केयर. यूजुअली क्लास, यूजुअली यहाँ तक में सब ठीक हो जाए. क्या होगा, लूज मोशन होगा 2-3 दिन, पानी बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, कभी कभी वॉमिटिंग भी हो सकती है. ठीक है? खाना नहीं खाया जाएगा, डाइजेशन नहीं होगा, बट यू विल कम बैक फाइन. यूजुअली वी फिनिश योर. मैम इसके लिए कौन सा मेडिसिन खाना चाहिए? बहुत सारी है लूज मोशन के लिए, तो कितनी सारी. लाइक यू नो, हम इसके लिए डॉक्टर के पास भी नहीं जाते जब तक कि ब्लड में सीवियर प्रॉब्लम नहीं हो. यानी ब्लड रिलीज हो रहा है, बहुत ज्यादा वीकनेस आ गई है. ठीक है? पहले तो हम सिंपल पेन किलर से ही कंट्रोल कर लेते हैं उसको. आपने अगर नॉर्मल पेन किलर भी खाया तो उसमें भी एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं जिससे डायरिया लूज मोशन कंट्रोल में आ जाए. लेकिन प्रॉब्लम कब होगी क्लास, मेडिसिन लिया तो भी, जब आपका वाटर लॉस कंट्रोल आपके कंट्रोल में नहीं. अगर आई एम लूजिंग वाटर, आई एम सपोज टू ड्रिंक इट, सो कीप ऑन ड्रिंकिंग वाटर. यू शुड नॉट गेट डिहाइड्रेटेड. सबसे बेस्ट सोल्यूशन टू डिसेंट्री इज थोड़े टाइम तक, मतलब मे बी 1 डे, फूड को आप रुकाइए, डोंट ईट. फिर क्या भूखा रहना है, नहीं, कुछ बहुत ही लाइट और प्लेन चीजें लीजिए. दूसरा, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, तो वो अमीबा वॉश आउट हो जाएगा बहुत सारा. और फूड नहीं खाया क्या होगा, पेन नहीं होगा, क्योंकि आप खाना खा रहे हैं और सिस्टम ऑलरेडी ट्रबल में, तो ऑलरेडी ट्रबल वाले को आप काम दे रहे हो कि खाना डाइजेस्ट करो, तो आपको लगता है आपकी इंटेस्टाइन करेगी, नहीं करेगी, फिर थ्रो इट आउट, तो फिर आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी. यू गेटिंग इट? सो यू हैव टू टेक दैट वे केयर. हाँ, जब आप मेडिसिन की बात कर रहे हैं, एंटी अमीबा के अगेंस्ट बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, बहुत सारे एंटीबायोटिक. एक बात समझ में आपको आनी चाहिए कि ये जो इंटेस्टाइन है ना, इधर अमीबा आ गया. ठीक है? वो हमारे ब्लड में नहीं है. तो अगर इन्फेक्शन बढ़ा और वो इंटेस्टाइन से ब्लड में गया तो आपको ज्यादा तकलीफ. तो हमको देखने की वो यहीं से निकल जाए, मतलब हम एंटीबायोटिक्स लेके उसको इधर ही किल कर दे. अमीबा की कॉलोनी नहीं बननी चाहिए. जब कॉलोनी बन जाती है तो इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है. आर यू गेटिंग इट? इट स्टार्ट्स डैमेजिंग द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन. एक बार ब्लीडिंग हुआ मतलब अमीबा ब्लड में भी गया, ब्लड में गया तो फिर वो लिवर में भी पहुंचेगा, लिवर को भी तकलीफ देगा. देन वी मे नीड हॉस्पिटलाइजेशन. इट्स लाइक, ठीक है? सो diarrhea, loose motion, flatulence, lots of gas in the intestine,
करेक्ट, पेन हो सकता है, करेक्ट, लॉट्स ऑफ स्टूल पासिंग, लॉट्स ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, लॉट्स ऑफ म्यूकस, एब्डोमिनल पेन, बराबर है, ब्लड लॉस हुआ तो केस सीवियर हो रहा है, लिवर में स्वेलिंग आ सकती है, केस सीवियर है, करेक्ट, एब्सेस मतलब लिवर भी ब्लीड कर रहा है, देन यू आर इन प्रॉब्लमेटिक कंडीशन, ठीक है, आर वी गेटिंग इट? कैसे कैसे हो सकता है? देखो ये बच्चे को, ये पानी पी रहा है, कैसे जगह से पी रहा है? एक ओपन पानी का सोर्स है, मे बी इट इज अ लेक, मे बी इट इज अ पॉन्ड, और वो डायरेक्ट पानी पी रहा है। और पानी में क्या है? पानी में क्या है? अमीबा। कौन सा अमीबा? एंटामीबा हिस्टोलाइटिका हुआ तो दिस चाइल्ड विल सफर फ्रॉम अमीबोइक डिसेंट्री। चलो हम तो ऐसे डायरेक्ट पानी नहीं पीते, तो और कैसे हो सकता? बोलो। हाथ हमारे गंदे हैं, किसी को डिसेंट्री, हम उसके साथ फूड शेयर कर रहे हैं, करेक्ट, तो कंटामिनेटेड फूड, वाटर, कंटामिनेटेड हाथ, हमारे हाथ गंदे हो सकते हैं, ठीक है। आपने बाहर से वड़ा पाव खाया, अब वो वड़ा पाव कैसे बना था, किसने बनाया था, वो जो आलू किसने पील किया था, उसमें क्या मिक्स हुआ था, वहां पे जो पानी यूज हो रहा है वो कैसा था, तो कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, याद रखो, वाटर एंड फूड। दूसरा, हैंड्स, छोटे बच्चे क्या करते हैं, अभी बारिश है, वो बारिश के पानी में खेलते हैं, यस, उनको जल्दी उनको हाथ पैर ठीक से धोने बोलते तो वो उसमें लेजीनेस कर, so they are not easily maintaining the अजान है। क्लास। किसी का ऑडियो ऑन है, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, ये जो हाथ गंदा है, कोई हाथ से हमने घर में आए एक बिस्किट उठा के खा लिया, हाथ में पढ़ने के टाइम पे जिन्होंने तो उधर ही Can you turn the video audio off? ओके, तो ये क्या हो रहा है क्लास? किसी का हाथ गंदा है, मेरा ही हाथ ले लो, ठीक है, मैं कॉलेज से घर पर आ गई, मैंने एक बिस्किट उठा के खा लिया, व्हाट विल हैपन? हो सकता है मेरे हाथ में कहीं से क्या था, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, तो वो मेरे मुंह में चला गया। एक एप्पल है, मार्केट से मम्मी ने लाया, आपने बिना धोए खा लिया, मम्मी कितनी बार बोलती है धोके खाना, बट वी आर ऑफन यूज्ड टू पिकिंग इट अप एंड ईटिंग, सो दैट कैन हैपन। आप कॉलेज के एनवायरनमेंट में हो, वहां पे अगर आप वॉशरूम वगैरह यूज कर रहे हो, तो पब्लिक प्लेस हो गई, वो पब्लिक प्लेस में कंटैमिनेशन के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। इसके लिए एक वर्ड याद करेंगे आप, परमानेंटली याद कीजिए, दिस इज नोन एज फीको। फीको मतलब अनडाइजेस्टेड वेस्ट, स्टूल्स, फीसेस, फीको ओरल रूट, फीको ओरल रूट। मुझे अगर डिसेंट्री है तो मेरे वेस्ट से वो किधर जा रहा है, इट इज गोइंग इनटू ड्रेनेज। ड्रेनेज लाइन में मॉस्किटो है, वो मॉस्किटोज, वो हाउस फ्लाइज उसके ऊपर बैठ गए, फिर वो कहाँ बैठ गए, खाने के ऊपर, फूड के ऊपर। आप सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड से पढ़ते हो ना, कवर फूड, ईट फ्रॉम कवर्ड प्लेसेस, ईट फ्रॉम हाइजीनिक प्लेसेस, करेक्ट। बट जब हम रोड साइड पे खा रहे हैं, if I'm eating pani puri, then am I checking the hygiene there? No. बहुत मुश्किल है ना चेक करना क्लास, isn't it? पर हम वो रिस्क लेते रहते हैं कभी कभी, करेक्ट। So when we are taking risk, at least we must see that the place is clean. How, from where is that water coming and who is making it, वो देखने जाएंगे तो आप कभी भी खा नहीं पाओगे बाहर, ठीक है। But can we avoid this? Can we make it minimum? Then chances of infection are less. तो फीको मतलब वेस्ट, ओरल मतलब माउथ, तो वेस्ट से किधर गया, हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज, पानी में आ गया, आपने गंदा पानी पी लिया, आपने गलत जगह से खाना खा लिया, आपके बॉडी में इन्फेक्शन जनरली 2-3 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन कभी कभी सीवियर हो सकता है, ठीक है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सपोज अगर मुझे अमीबॉइक डिसेंट्री है तो आई शुड नॉट शेयर फूड, आई शुड नॉट अलाउ पीपल नियर मी टू शेयर वाटर, वी हैव टू अवॉइड इट, ठीक है। सो वाटर, फूड, डर्टी हैंड्स आर द मेजर सोर्स ऑफ कंटैमिनेशन। आजकल आप कितनी बार हाथ धो रहे हो, 1000 बार,
आई होप यू आर फॉलोइंग द नॉर्म्स, ठीक है। पर यूजुअली तो हम ऐसा नहीं करते थे ना, यूजुअली क्या हम सैनिटाइजर यूज कर रहे थे, नहीं कर, करेक्ट, यस। सो लुक एट द फर्स्ट लाइन, fecal oral route, eating with dirty hands, contaminated water and food. You carry your own water bottle most of the time, नहीं करते तो करो, कैरी करो। पेरेंट हमेशा बोलते हैं आपको पानी अपने घर से लेके जाओ, ताकि आप बाहर का गलती से भी कंटामिनेटेड पानी आप नहीं, करेक्ट। वी ट्राई टू अवॉइड ईटिंग आउटसाइड जितना हो। अगर मुझे बाहर कुछ पीना है तो व्हाट शुड आई ड्रिंक, चाय कॉफी, क्योंकि वो बॉयल होके बनती है तो अमीबा की डेथ हो जाएगी। बट इफ आई एम ड्रिंकिंग सम शुगर केन जूस, गन्ने का जूस पी रहे हैं तो हाई रिस्क ले रहे हो ना, गन्ने के ऊपर कितने सारे हाउस फ्लाइज बैठते रहते हैं, आपने देखा हो, करेक्ट। तो वो दैट इज व्हाट नीड्स टू बी अवॉइडेड। हर बार इन्फेक्शन होगा, नो, यू नेवर नो कब होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? यस, ओके। ये देखिए मलेरियल पैरासाइट की तरह ये किसका साइकिल है, अमीबॉइक। लेकिन क्लास ये बहुत डिटेल में नहीं करना है, बुक में इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, सिर्फ ये साइकिल दिया, सेम यही साइकिल, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ नहीं है, बट लेट्स लुक एट इट वंस, एक बार आप हल्का सा देख लीजिए व्हाट हैपेंस एंड वेयर इट हैपेंस, ठीक है। इसका भी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म हमने देखा है, ठीक है क्लास। ये जो दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, ये है आपका अमीबा, ठीक है। दिस इज द अमीबा फुल्ली ग्रो, इट अंडरगोज बाइनरी फिशन, ये देखो 2 दिख रहा है, ठीक है। फिर 2 का 4 बनेगा, बहुत सारा बन सकता है। इट गेट्स कवर्ड बाय अ कवरिंग कॉल्ड सिस्ट, कभी भी सिस्ट वर्ड आया मतलब कवरिंग, ठीक है। देन दिस सिस्ट विल ब्रेक, ओके, इट विल डिवाइड 1 to 2 2 to 4, ये देखो यहाँ पे 4 दिख रहे हैं, 4 सर्कल्स दिख रहे हैं। सो द वर्ड इज quadrinucleate, okay. The cyst will break and release, ये जैसे ही रिलीज हुआ it will again divide and form many amoebas, फिर वो अमीबा ग्रो। आई रिपीट, ये छोटे अमीबाज है, ये मैच्योर अमीबा ने क्या किया, 2 में डिवाइड हो गया, फिर उसने अपने ऊपर एक कवरिंग बनाना चालू किया, पूरा कवर रेडी हो गया सिस्ट, ठीक है। उसके अंदर एक डिवाइड 1 to 2, देखो 2 दिख रहे हैं, 2 न्यूक्लियस, फिर 2 to 4 4 दिख रहे हैं, क्वाड्री न्यूक्लियस, फिर वो ब्रेक हो जाता है और वो स्मॉल मेटासिस्टिक अमीबास को रिलीज कर दे। एंड व्हेन इट डिवाइड्स it can form many small, look at the word, amoebules, ये आपकी इंटेस्टाइन में हो रहा है। एंट्री किसने की, अमीबा ने, ओके। सपोज गंदे पानी में 50 अमीबा मेरे बॉडी में आ गए, ये एक है क्लास, दिस इज 1। अब सोचो ऐसा हुआ तो 50 से कितने बनेंगे, 500, फिर ये 500 फिर से ऐसा करेंगे, कितने बनेंगे, 5000, फिर ये ऐसे करेंगे। सो दिस कीप्स ऑन गोइंग एंड द अमीबॉइक कॉलोनी कीप्स ऑन ग्रोइंग। यहाँ पे मॉस्किटो है कहीं, नहीं, कोई और है, नहीं, बस अमीबा को आपने एंट्री दे दी, किधर पहुंच गया, इंटेस्टाइन में। अब वो क्या कर रहा है, सेल डिवीजन, डिवाइड होता है, खुद को एक प्रोटेक्टिव कवरिंग से कवर कर लेता है, योर इंटेस्टाइन इज अनेबल टू किल इट, ठीक है। फिर वो ब्रेक होता जाता है, आर यू गेटिंग इट। यही सिस्ट कहाँ जाएगा, आपके वेस्ट प्रोडक्ट में बाहर भी जाएगा, फिर वो बाहर पानी में है, फिर वहां पे स्मॉल अमीब्यूल्स आ रहे हैं, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। नाउ दिस इज नॉट डिस्क्राइब्ड, तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में नहीं है, पर साइकिल दिया है, ठीक है। लास्ट ईयर तक साइकिल नहीं था, यस। लेट्स लुक एट अ सिंप्लीफाइड फॉर्म, ये बुक में नहीं है, तो अगर आपको वो सिंपल रखता है तो वो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये हमारे माउथ के अंदर आ गया, मैंने गंदा पानी पी लिया, किधर पहुंच गया, इंटेस्टाइन, बराबर है। वहां पे देखो वो डिवाइड हो रहा है, यस। थोड़े टाइम तक क्या करेगा वो, कुछ नहीं करेगा, असिम्प्टोमेटिक,
आराम से, आपको पता भी नहीं चला। आप डिवाइड होना शुरू किया, इन्वेसिव, वो आपके ब्लड में ट्राई करने की कोशिश कर, इट इज ब्रेकिंग योर इंटेस्टाइन, और यहाँ पे देखो वो लिवर में पहुंच गया, दिख रहा है, हीमोलोजिनस मतलब ब्लड के थ्रू लिवर में भी जा। उसके बाद उसने अपनी कॉलोनी बढ़ाई, फिर आपके वेस्ट प्रोडक्ट में बाहर गया, बाहर वेस्ट पानी में आ गया, दूसरे पर्सन की बॉडी में। यस, डू वी नीड अ मॉस्किटो? नो, वी द अमीबा जस्ट नीड्स योर इंटेस्टाइन। उसको एक बार एंट्री मिल गई, वो क्या करने वाला है, पहले वो उधर एडजस्ट करेगा, आपको कुछ नहीं हो। उसके बाद यू विल हैव पेन, लूज मोशन स्टार्ट हो गया, यस, वो वहां पे ग्रो होने लग गया। उसके बाद इट विल ट्राई टू एंटर योर ब्लड, अगर वो ब्लड में गया तो फिर वो लिवर में भी जाए। ये सीवियर है, हो सकता है वो यहीं रुक जाए और आप मेडिसिन ले लो तो उसकी डेथ हो जाए। गेटिंग इट? हमारी मेडिसिन यहाँ काम करेगी, ठीक है, वो सिस्ट को ब्रेक कर देगी, पर अगर नहीं ब्रेक हुआ तो सिस्ट आपके वेस्ट प्रोडक्ट में बाहर, फिर आप दूसरे को भी स्प्रेड कर रहे हो। गेटिंग इट? कैन यू सी एंट्री है क्या? एंट्री नहीं, माउथ से मतलब पानी और खाना। क्या करना है? हाइजीन, एकदम हाइजीन, हाथ धोकर ही कुछ भी खाना है, साफ जगह से ही पानी पीना है, करेक्ट? हाइजीन एंड सैनिटेशन। सी क्लास, आर यू सफरिंग? यस, बट आर यू स्प्रेडिंग? यस, इजंट इट? आप सफर भी करोगे, आप स्प्रेड भी करोगे, आपके सारे वेस्ट में अमीबा बाहर जा रहे। आर यू गेटिंग इट? सो दिस इज द साइकिल ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका, और इसमें कोई वेक्टर की भी जरूरत नहीं है, ट्रांसमिशन इज वेरी वेरी इजी, ठीक है? आर वी क्लियर विद दिस? ओके, हाउ डू वी चेक इट? डायग्नोसिस वेरी सिंपल, आपका जो वेस्ट है उसको बोलते हैं स्टूल टेस्ट। कभी भी क्लास हम बीमार होते हैं, क्या टेस्ट होता है? ब्लड, सबसे पहले क्या टेस्ट होता है? ब्लड। और क्या चेक होता है? यूरिन, बराबर है। और क्या चेक होता है? स्टूल, करेक्ट? स्टूल टेस्ट, यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट। तो यहाँ पे अमीबा कहाँ पे? इंटेस्टाइन में। तो क्या चेक करना चाहिए? फीसेस ना, जो भी आप ईजेस के वेस्ट बाहर फेंक रहे हो, इंटेस्टाइन से जो बाहर आ रहा है, तो इट इज ऑलवेज चेक्ड विद स्टूल टेस्ट, उसमें आपको अमीबा दिखाई देता है। क्लियर? आप कोई मेडिसिन की बात कर रहा था, मैंने कहा बहुत सारे एंटीबायोटिक्स है, आपके बुक में ये दो मेंशन, मेट्रोनाइडाजोल एंड टिनिडाइजोल, ठीक है? इसको छोड़ के भी हजार है, यस, बहुत सारे मेडिसिन है, बहुत कॉमन मेडिसिन है, आराम से कंट्रोल में आ जाए। ओके, मतलब डिसेंटली, ऐसा नहीं आपने मेडिसिन ली आप ठीक हो जाओगे, ऐसे मान के, ठीक है? इज इट क्लियर? यस, सो मेट्रोनाइडाजोल दिख रहा है आपको, और दूसरा टिनिडाइजोल। ओके, ये मेडिसिन का नाम नहीं, ये केमिकल का नाम, मेडिसिन के बहुत सारे नाम, ठीक है? इज दैट क्लियर? यस, सो कैन बी ट्रीट इट वेरी इजीली, यस, वेरी फाइन। प्रिवेंशन, हाथ धोइए, गर्म पानी पीजिए, बॉइल्ड, क्लोरीनेटेड वाटर, फिल्टर्ड वाटर, करेक्ट? बहुत सारे टाइप के फिल्टर से आजकल तो पानी गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, करेक्ट? यू कैन डायरेक्टली टेक फ्रॉम, के घर में एक्वागार्ड होगा या कोई फिल्टर होगा, नहीं है तो बेस्ट क्या है? बॉइल्ड वाटर। पानी गर्म हो गया, एकदम बॉइल हो गया, अमीबा इज डेड। अवॉइड ईटिंग अनहाइजीनिक फूड, पर वो तो हमें बहुत पसंद है, तो वहां पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए, करेक्ट? वॉश वेजिटेबल्स वेरी क्लीन, आपको पता है वेजिटेबल्स कैसे जगहों पे ग्रो होते हैं, तो वहां पे वेस्ट वाटर, सीवेज वाटर हो सकता है, सो वी हैव टू वॉश देम वेरी वेरी क्लीन। स्पेशली अगर हम रॉ खा रहे हैं, मतलब हम सैलड खा रहे हैं कोई भी फॉर्म में, तो वी मस्ट सी दैट दे आर वॉश्ड वेरी क्लीन, हैव प्रॉपर हाइजीन फैसिलिटीज एंड हैबिट्स। गवर्नमेंट को हमारे लिए हर जगह पे सैनिटरी फैसिलिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए ना, क्लीनलीनेस, सीवेज, जो ड्रेनेज लाइन है उसको डिस्पोज कौन करता है? गवर्नमेंट। तो वो सारी फैसिलिटीज प्रॉपर होनी चाहिए हर कंट्री, हर जगह, करेक्ट? जहाँ पे ठीक से नहीं होगा वहाँ पे गंदा पानी होगा, वहाँ पे कंटेमिनेशन होगा, हाउस फ्लाइज होंगे, मॉस्किटोज होंगे,
इंसेक्ट होंगे वो ये सब चीजों को स्प्रेड करेंगे, करेक्ट। सो वी हैव टू मेंटेन कम्युनिटी हाइजीन एंड सैनिटेशन। खुद को तो क्लीन रख रहे हैं या बाकी आजू बाजू में भी वी हैव टू सी थिंग्स आर क्लीन एंड अंडर कंट्रोल, ठीक है। यस क्लास, देखो सैनिटेशन, ह्यूमन एक्सक्रीटा दिख रहा है, उसका डिस्पोजल क्लीन होना चाहिए, यहाँ वहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है। वाटर फिल्ट्रेशन करना हो चाहिए, घर में पानी आने के बाद भी अगर वो बॉईल हो सके तो बहुत अच्छी बात है। कीप वॉशिंग योर हैंड अगेन एंड अगेन, स्पेशली व्हेन यू कम फ्रॉम आउटसाइड। फूड हाइजीन, वेजिटेबल्स वगैरह को क्लीन वॉश करना चाहिए। जो भी फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं दे शुड मेंटेन गुड हाइजीन, करेक्ट। आर यू गेटिंग इट? एंड वी मस्ट प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन, जो हम अभी कर रहे हैं। ये चैप्टर बुक में क्यों है? हेल्थ एजुकेशन, करेक्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो हाथ वगैरह ठीक से धोने हैं, पानी क्लीन पीना है, फिल्टर्ड पीना है, फिल्टर्ड नहीं तो बॉइल्ड पीना है, करेक्ट। एंड इफ वी आर डीलिंग विद फूड, किचन में अगर मैं हूँ तो मुझे क्या करना है, जो भी वेजिटेबल मार्केट से आता है दैट शुड बी वॉश्ड वेरी क्लीन, गेटिंग इट? सो दिस इज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ठीक है। तो ये हमारा क्या खत्म हुआ? अमीबॉइसिस। और हम आ गए थर्ड डिजीज, एस्कैरियासिस। एस्कैरियासिस, ये डायग्राम लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में था। मेल और फीमेल एस्कैरिस, किंगडम एनिमेलिया, कौन से फाइलम को बिलोंग करता है? यस समबडी, दिस बिलोंग्स टू फाइलम, एक तो फ्लैट वॉर्म है, दूसरा राउंड वॉर्म है। एस्केलमिंथिस, फाइलम एस्केलमिंथिस। इजी नेम क्या था? सामने दिख रहा है, निमैटोडा। व्हाट वाज द फाइलम? निमैटोडा। तो उसमें हमने ड्रॉ किया था मेल एस्केरिस, छोटा होता है, फीमेल लॉन्ग होती है। मेल का एंड कर्व्ड होता है, फीमेल में कर्व नहीं होता। फीमेल इज फैटर, मेल is thinner, correct? That's why the two diagrams are there. So it is infection of worms. Ascariasis is infection of worm. आप बहुत बार सुनते होंगे क्लास, छोटे बच्चों के पेट में सुनते हैं ना, कीड़े हैं, सुनते हो कि नहीं? अगर घर में कोई छोटा बच्चा है तो आप ऑप्शन सुनते होंगे कि अरे इसके पेट में कीड़े तो नहीं हो गए। तो बहुत बार हम उसको टैबलेट देते हैं once in a month ज्यादा, दैट इज डीवॉर्मिंग टैबलेट। डीवॉर्मिंग, कीड़े को निकालने की, ठीक है, मारने की, करेक्ट। और ज्यादातर वो वर्म कौन सा होता है? एस्कैरिस। ज्यादातर वो वर्म कौन सा होता है? एस्कैरिस। और उस डिजीज का नाम है एस्कैरियासिस। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजीज? एस्कैरियासिस। किधर है एस्कैरिस बॉडी में? इंटेस्टाइन में। इट इज इन द इंटेस्टाइन। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम? एस्कैरिस lumbricoides. Ascaris lumbricoides. Which group of worm? Roundworm. कौन सा फाइलम? निमैटोडा। नीमा मतलब थ्रेड, नीमा मतलब थ्रेड, तो ये थ्रेड की तरह होते हैं ना, लॉन्ग, सो दे आर कॉल्ड निमैटोडा, ठीक है। So what is the name of the disease? Ascariasis, caused by Ascaris lumbricoides, which belongs to the category of roundworm, ठीक है। अब अगर Ascaris हमारे पास आ गया है तो पहले मैं टेक्सचुअल पढ़ रही हूँ, ये इतने सारे टेक्स्ट बुक में नहीं, मैंने इलेबोरेट किया। यहाँ पे देखिए क्या होगा, पेट में दर्द होगा, यस, डिस्कम्फर्ट, वॉमिटिंग, छोटे बच्चे बोलते हैं ना पेट दुख रहा है, अगर वो बार बार बोल रहे तो हम क्या करते हैं, चेक कि कहीं उसके पेट में वॉर्म्स तो नहीं, वॉमिटिंग हो सकती है, समटाइम्स इट कैन लीड टू फीवर, ओके, हर बार नहीं। दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट, उनके वेस्ट मैटर में कभी कभी कीड़े आ जाएंगे, करेक्ट, एस्कैरिस बाहर आ जाएगा वेस्ट के साथ, तो लाइव वॉर्म्स कैन बी सीन इन द fecal matter. What is fecal matter? Stools, the waste. Sometimes the larva of Ascaris, larva छोटा सा, वो पहुंच जाता है
लंग्स में, और अगर वो लंग्स में है तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, निमोनाइटिस, निमोनिया होता है उसका इन्फेक्शन जैसा, दैट इज कॉल्ड निमोनाइटिस. निमोनाइटिस इज इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन इन द लंग्स, एल्वियोलाई में तकलीफ होने लगी, ठीक है. और टू किल दैट वर्म एंड टू गिव यू एन आइडिया, आपका ब्लड सेल eosinophil is a blood cell that will increase, and that is called eosinophilia. That is called eosinophilia. Because of worm, what can happen? You may lose weight. क्यों? आधा से ज्यादा खाना तो एस्केरिस खा गया. Are you understanding? तो who is increasing? Only एस्केरिस बढ़ रहा है हमारी बॉडी. और क्या हो रहा है? हमारा वेट कम हो रहा है. Loss of appetite because of infection. You may not feel like eating. कभी कभी क्या होता है, the person eats too much क्योंकि worm is eating the food, you are not eating. Are you understanding? तो या तो बहुत ज्यादा खाना खाएंगे या तो भूख नहीं लगेगी. Loss of appetite. Appetite is your hunger, पर आपको भूख नहीं लग रही क्योंकि worm is causing infection to you. Are you understanding? Class, डू यू एग्री कि इंटेस्टाइन में एक नहीं ज्यादा एस्कैरिस होंगे? यस, एक ही एस्कैरिस होगा, बहुत सारे होते हैं ना. तो एस्कैरिस ज्यादातर क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं. क्यों? एक तो प्रॉब्लम है कि वो मेल फीमेल अलग अलग है, तो रिप्रोडक्शन के लिए दो चाहिए हमको. सो जनरली दे आर मोर इन नंबर. मतलब एक पर्सन के इंटेस्टाइन में देयर कैन बी 10 एस्कैरिस, देयर कैन बी 15 एस्कैरिस, देयर कैन बी 25 एस्कैरिस आल्सो. तो हमारी इंटेस्टाइन तो 7 मीटर लॉन्ग है. हो सकता है हमें पता ही ना चले जब तक कि वो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं हो जाते हैं, टिल द पॉइंट दे डोंट कॉज सीवियर प्रॉब्लम्स टू यू. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो ये सिम्टम्स है, ठीक है. नाउ क्लास, सिम्टम्स इन जनरल अगर आप देखेंगे तो एब्डोमिनल पेन हो रहा है, इंटेस्टाइन में कभी कभी ब्लॉकेज हो जाता है अगर बहुत ज्यादा एस्कैरिस है, तो इंटेस्टाइन से फूड पास नहीं हो पाता. पार्शियल भी हो सकता है, टोटल भी. सीवियर पेन हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, रेस्टलेसनेस, मतलब आपको बार बार क्या होगा, ऐसे लगेगा अंदर कुछ हल्का सा मूवमेंट हो रहा है. सो आपकी स्लीप क्या होगी? डिस्टर्ब, यू विल नॉट बी कंफर्टेबल. और स्टूल और वेस्ट में क्या रहेगा? वॉर्म. कभी कभी वॉमिटिंग में भी वॉर्म बाहर आ सकता है, ठीक है. सो दीज आर द बेसिक सिम्टम्स which can happen. It can cause coughing and pneumonia. अगर उसका लार्वा किधर पहुंच गया क्लास? लंग्स में, ठीक है. ज्यादातर हम कहाँ पे रहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है. सो फूड तो सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जाएगा ना क्लास. वर्म आपके बॉडी में कैसे आएगा? कैसे आएगा? सेम चीज, पीको ओरल रूट. तो एस्कैरियोसिस की साइकिल हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है. आई एम नॉट गोइंग, आई हैव जस्ट डन द सिम्पटम पार्ट ऑफ इट. सो आई विल स्टॉप इट हियर टुडे. जस्ट अ मिनट, आई विल गेट बैक टू यू. आर यू गेटिंग इट क्लास? आर यू गेटिंग हाउ टू लर्न अ डिजीज? यू हैव टू लर्न व्हाट? कॉजेस, सिम्पटम, इफेक्ट, कंट्रोल. क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे रुकाना है, और क्योर है तो क्योर, ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट में क्या आएगा? मेडिसिन है तो मेडिसिन, नहीं है तो फिर कुछ ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? गेटिंग इट? सो लाइक दिस वी आर मूविंग अहेड विद डिजीज. नाउ क्लास, डिजीज में एक छोटी सी प्रॉब्लम, हर चीज का कॉजेज, इफेक्ट, कंट्रोल है, लेकिन ऐसी बहुत सारी डिजीज है, तो 2 मार्क के ऊपर क्वेश्चन नहीं जाता डिजीज यूज, पर हमको पढ़नी पड़ती है बहुत सारी. कोई भी एक आ गई, गिव कॉजेज एंड सिम्पटम ऑफ एस्कैरियोसिस, बस हो गया, खत्म, उतना कुछ. तो 2 मार्क के लिए, इसलिए हर एक का 2 कॉज, 2 सिम्टम्स, 2 कंट्रोलिंग मेथड एटलीस्ट आप लर्न, ठीक है. इन केस यू आर फाइंडिंग इट लेंथी, सो देन यू विल एटलीस्ट डू दैट, ठीक है. सो वी स्टॉप हियर फॉर टुडे एंड वी कंटिन्यू टुमारो. Okay, fine. Thank you. Okay, class. Thank you so much for today.